नमस्कार, मैं हूँ किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। संसद में बजट सत्र के सेकंड फेज का सोमवार को 6वां दिन है। आज भी विपक्षी दलों के सांसद देश भर में एलपीजी संकट को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही है। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। टीएमसी सांसदों ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के खिलाफ दोनों सदनों में प्रस्ताव किया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार को सभी सांसदों के नाम एक ओपन लेटर में लिखा था, जिसमें उन्होंने संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। स्पीकर ने लेटर में लिखा कि पिछले कुछ समय से सदन और संसद परिसर में कुछ सदस्यों के आचरण से संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। जिस तरह बैनर, प्लाकार्ड और संकेत दिखाए जा रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और जो व्यवहार देखा जा रहा है, वो हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने लिखा कि यह समय है कि हम सभी संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए गंभीर आत्ममंथन करें। सभी दलों के नेताओं को भी अपने सदस्यों में अनुशासन और उच्च आचरण सुनिश्चित करना चाहिए। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, केरल एक अहम चुनाव है। यह हमारे लिए बहुत अनावश्यक चुनौती है, क्योंकि पिछली बार सीपीएम एलडीएफ सरकार सत्ता में वापस आई थी, जो अजीब है क्योंकि आधी सदी से दो पार्टियां, दो फ्रंट पारी से बारी सरकार में रही है। So we have elections coming up in 5 states. Kerala is in a important election. It's a very important challenge for us because we've had the CPM left LDF government coming back to power last time, which is unusual because for half a century the two parties, the two fronts have alternated in the government. So we don't want to allow them to repeat this. We need to change the government again this time. I should mention, however, that this very surprisingly early election has taken us all aback. We were all expecting the last 10 days of April maybe, but 9th of April we are voting in Kerala. That means there's just barely 3 weeks left and 3.5 weeks. And whereas the CPM has a lot of incumbents, 99 of their MLAs, I think 90 odd of those are going to be contesting. For us, we have a lot of new candidates and they need more time to familiarize themselves with the electorate and so on. So it is a bigger challenge for us, but we are working hard, prepared to rise to that challenge. And, I think in the next couple of days you'll see some candidates being announced. In any case, it is up to Monday the filing of nominations. We will not miss that, I promise you. I will be missing Parliament. I have a almost 100% attendance record throughout my career, but now it looks like this election is going to make that impossible. I will probably not be here the last 2 weeks of Parliament in order to campaign. Many Chief Minister candidate in Congress, sir. A big question is that whether the Member of Parliament will be fighting the Assembly elections also, because there are so many Member of Parliament who are willing. I know. Personally, I'm not in favor of any blanket rule. I think we should look at the individual merits. You know, our approach is usually supposed to have been that winnability is the most important thing. So if there are some seats where you can only win by putting one of our MPs forward, I don't think we should have a blanket rule against that, but we'll have to see. The screening committee does not have any MPs in it, so the screening committee will be the ones deciding. We'll see what they decide. कंगना रनौत ने कहा कि जब दुनिया में महंगाई और किल्लत बढ़ रही है, भारत में नई परियोजनाएं शुरू हो रही है और एलपीजी सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट कर रहे हैं एलपीजी को लेकर, वो कह रहे हैं कि शॉर्टेज हो गई है इसकी, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए, जब हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है सारा विश्व अभी देख रहा है
कि हमारी कितने स्ट्रांगली जब सब जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ों का जो है वो किल्लत हो रही है, हमारे देश में जो है हर दिन के दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है। तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। और मैं लोगों को यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें और जिस कोविड के वक्त भी उन्होंने जैसे पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा। मैम, राहुल गांधी का कहना है कि जालौन जिले के उरई शहर से सटे बोहदपुरा गांव में शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों में महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने गांव के मुख्य मार्ग पर जाम लगा रखा। प्रदर्शन की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मंदिर के पास शराब का ठेका खोला गया है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल खराब हो रहा है। गांव की महिलाओं का आरोप है कि यहां दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और कई बार नशे में लोग हंगामा भी करते हैं। महिलाओं का कहना है कि इससे परिवारों पर भी बुरा असर पड़ रहा है और गांव का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर शराब के ठेके के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों महिलाएं सड़क पर आ गई और ठेका बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। महिलाओं ने मुख्य मार्ग पर बैठकर जाम लगा दिया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सर, ये भोजपुरा में जो ग्रामीणों ने जाम लगाया, ये क्या समस्या है? यहाँ एक देसी शराब का ठेका है जो गांव के बीच में है। तो गांव की कुछ महिलाओं और व्यक्तियों पुरुषों द्वारा इस ठेके को यहाँ से नए सेशन में हटाने की मांग को लेकर के जाम लगाया गया था। वार्ता करके जाम खुलवा दिया गया। स्थिति सामान्य है। सर, क्या प्रशासनिक रूप से किसी से वार्ता हुई कि अगले जाम में? वार्ता हो रही है और समस्या का समाधान भी किया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एलपीजी की कमी पर कहा कि यह समस्या अब पूरे देश में बढ़ रही है और कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद ऐसे हालात बने हैं, लेकिन सरकार ने इससे निपटने के इंतजामों की जानकारी नहीं दी। उन्होंने सवाल उठाया कि इस युद्ध का असर भारत को क्यों झेलना पड़ रहा है और भारत का आधिकारिक रुख क्या है। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं। कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है और ये जो कमी है ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया में जो आज हालात बने हैं इस युद्ध के बाद वो होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने कोई प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। सरकार तो हमेशा डिनाइल में रहेगी ना। सरकार कैसे बोल सकती है कि हमने गलती की है या हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति हमारा जो रवैया था वो गलत था। सवाल ये है कि इस युद्ध में भारत को खामियाजा क्यों उठाना पड़ रहा है? भारत का स्टैंड क्या है? क्या हमने युद्ध विराम की बात की है? क्या हम चाहते हैं कि खाड़ी में लगभग 90 लाख या 1 करोड़ लोग हिंदुस्तानी लोग रहते हैं अलग अलग मुल्कों में, उनके भविष्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? और हमारा जो एक हमेशा से ट्रेडिशनल स्टैंड रहा, चाहे पार्टी किसी की सरकार भी हो, हमारा स्टैंड रहा न्यूट्रल स्टैंड रहा, नॉन वायलेंट स्टैंड रहा और हमने हमेशा कहा है कि जो भी यहाँ पे कहीं भी युद्ध हो रहा हो उसको विराम मिलना चाहिए। अपील तो सरकार कर सकती है, अपनी बात तो रख सकती है। अमेरिका का ऐसा क्या दबाव है कि हम तेल के लिए उनकी बात मान रहे हैं, उनका सामान खरीदने की बात मांग रहे हैं, उनके दबाव में अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं? और हमारी निष्पक्षता, हमारे जो नॉन अलाइनमेंट का एक स्टैंड था, एक बड़ा मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएं। आज हम खुद मौन बैठे हैं। ये बड़ा एक बदलाव आया भारत की देश नीति में। मुसीबत में घिरी बीजेपी को चुनाव में जाना है, क्या अपोजिशन खासकर कांग्रेस इसे? अरे चुनाव तो साल में 20 बार चुनाव होते हैं, बात चुनाव की नहीं है, बात भारत की है। इस देश का जो स्टैंड है वो किसी एक दल तक सीमित नहीं है और भारत के लोग चाहते हैं कि हमेशा शांति बहाली हो और बिना वजह अगर का युद्ध होता है तो उसके युद्ध विराम की बात की जाए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि अमेरिका ने और ट्रंप ने ऐसा भयानक दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि हम कुछ कहने से बच रहे हैं। हर जगह वो अमेरिका बोल रहा है कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे। अब हम तेल कहाँ से लेंगे, कितना लेंगे, क्या दाम पे लेंगे, ये हमारा निर्णय है। हो सकता है ना लें, लेकिन ये पाबंद कर देना, पहली बार भारत के हाथ बांध दिए गए हैं, ये मुझे लगता है कि भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी।
पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आरएलएम प्रमुख और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। पांचवें उम्मीदवार की यदि बात हो रही है, क्योंकि आप तो पांचवें, देखिए इसमें पांचवा और पहला का कोई मतलब नहीं है। 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आज क्या नामांकन के दिन से ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से सफल से बीजेपी की वोट नहीं हो पाया, मेरे साथ सभी के सभी 41। हाँ देख लीजिएगा ना, अरे आप इंतजार कर लीजिएगा ना, 4 बजे पता चल जाएगा ना उनको। आज अभी वो 3 कांग्रेस के विधायक नहीं आए हैं जिन पर ये डाउट हो रहा था और ट्रेसलेस थे, उनका हमने सूची अभी तो हमको नहीं मालूम कौन आए कौन नहीं आए, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमको पता नहीं है। लेकिन 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार सभी जीतेंगे, इतना हमको पता है। तेजस्वी यादव ने एक दावा और किए हैं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी का महाराष्ट्र में हलवा, उसी तरह का हाल नीतीश जी का बिहार में किया। अरे उनके दावा का क्या है भैया, नया कपड़ा उपड़ा सिलवा करके मुख्यमंत्री पद का ओथ लेने के लिए तैयार थे। आप लोग ही बता रहे थे ना, क्या हो गया, यही है उनका। बस चलिए ठीक है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। तब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एनडीए 5 सीट, 4 सीट तो कन्फर्म ही है, 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही है। हम लोगों को और भी सपोर्ट है, समर्थन है और बहुत बड़े मार्जिन से 5 सीट एनडीए जीतेगी। आज शाम में रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। सर, बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव के भी तारीखों का ऐलान हो गया है, सर क्या कहेंगे? नहीं, कल शाम में तारीखों का ऐलान हो गया है। जो फीडबैक आ रहा है खास करके आसाम और बंगाल से, जो कि हम लोगों के बगल में भी है, तो दोनों जगह हम देख रहे हैं कि बड़े मार्जिन से सरकार वहां पर एनडीए की, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि लोगों को भरोसा, ट्रस्ट केंद्र सरकार पर है। और बंगाल में खास करके जो सरकार अभी है वहां पर जिस तरह का काम हुआ है, लोग बहुत परिवर्तन के लिए वहां पर बिल्कुल वो वहां से दिखाई पड़ रहा है। सर, राज्यसभा में वोटिंग से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को हाउस अरेस्ट किया, क्या लगता है अपने विधायकों पर ही? नहीं, सब सही बात बोल है कि अपने विधायकों पर नहीं भरोसा रखना। अन्य पार्टी के भी लोग थे, विधायक थे, कोई किसी को इस तरह से नहीं किया, सब विधायक स्वतंत्र है, घूम रहे हैं। लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना, आप देखे होंगे कि इसी तरह इन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो घर में सबको बंद कर दिया था, अपने घर में पटना में सबको बंद कर दिया था। इसी तरह राज्यसभा का चुनाव है, जिस तरह से विधायकों को वो एक होटल में बंद करके रखे, इसका मतलब आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब विधायकों को आप पर भरोसा नहीं है, आपके लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, आप नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में आप और देखिएगा, उस पार्टी में बहुत सारे लोग, जो हम लोगों को सिग्नल मिल रहा है, आने वाले समय में उस पार्टी को, इनके लीडरशिप को खिलाफ वो लोग अलग होकर निकले। सर, क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद है सर? अब कोई भाई अपने मन से कोई लगता है बिहार के विकास, डेवलपमेंट के लिए कोई आगे बढ़ करके उसको क्षेत्र का विकास करना है, जनता के वोट लेकर कोई अगर आता है तो स्वागत है। बिहार की राजनीति में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर हैरान करने वाला मोड़ सामने आ सकता है। पटना से आरएलएम विधायक माधव आनंद ने बड़े दावों के बीच एक ऐसा बयान दिया है जो विपक्ष को परेशान कर सकता है। क्या 5 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है या कुछ ऐसा होगा जो सबको चौंका देगा, आइए जानते हैं। इलेक्शन है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग अपने 5 कैंडिडेट की जीत को लेकर? अब तो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, कॉन्फिडेंट ही नहीं है। हम लोग की जीत जो है सो सुनिश्चित है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी आपको कहा था कि जितनी संख्या की आवश्यकता है 5 सीट जीतने के लिए, उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है। कहीं कोई दुविधा, असमंजस की स्थिति नहीं है। हमारे सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जो है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का जब आदेश आ गया तो हम सब लोग अक्षरशः पालन करने का काम कर रहे हैं।
और शाम के टाइम में आप लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। अच्छा, आरजेडी ने जिस तरीके से अपने विधायकों को होटल में रखा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक नहीं पहुंचे हैं, कुछ लोग अपना फोन ऑफ कर लिए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, किसने फोन ऑफ नहीं किया उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संख्या बल हमारे पास है और उन लोगों को घबराहट है, उन लोगों को अपने विधायक पे भरोसा नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, इसीलिए हम लोगों को कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं और चेहरे पे मुस्कान भी आपको हमेशा मिलेगा, इसीलिए कोई कठिनाई नहीं है। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तीसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। और सर के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब एक साथ 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग चुन के भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत जैसे हम लोग करने का काम राज्यसभा में करेंगे। और मेरा एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, अभी देखते जाइए 4-5 घंटे में आपको सारा क्लियर पिक्चर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा में कटक के श्री रामचंद्र भाजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लग गई है। हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई है, इनमें से 7 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, 3 की मौत हो गई है। आग पहली मंजिल पर ट्रॉमा केयर के आईसीयू में लगी थी। यहां करीब 23 मरीज भर्ती थे, उन्हें बचाने में अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी झुलस गए। अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी सुबह घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे की हाई लेवल जांच का आदेश दिया है। श्री रामचंद्र भाजा मेडिकल कॉलेज कटक का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पूरे राज्य से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। सर आमे तो से आईस भीतर थी, आमे मु खटा को अनेजी दीटा 20 कि 25 भितर ये घटना है। तापरे मु आसिनी आसिकी से मो पुत्र बाबू कही तू टे जा से भितर को झील कति मुझे ये मो देह टे कौन हो गड़े पड़े। हठात कहीदे आसी गोटे स्त्री लोक पूरा चित्कार कला गैस सी हिंदी कहूँ आम ओडिया लोक हिंदी बुझीपार कौन है आम भाव कि गोटे लोक किसी असुविधा है। देखला बेलू धुआं कूड़ी होगला से घर भितर आईसीयू भितर पिला अच्छे मुझे भितर गनी आ हठात बस पलि आई आम पुतरा शुई आम से आईसीयू भितर 4-5 जन थी। स्त्री लोक गोटे पेसेंट कतर जड़े से सर नियम अनुमान 4-5 जन थे। से तो मो तो हठात मो पुतरा बहू को आउ जो मैंने पुरुष लोक शुई आ गोटे स्त्री लोक पूरा भितर को गली भितर शुईला हूँ डाकिनी निदर पड़ जाता डाकी टाणुनी मुझे गैस टाँकी फाटी सब उठी पड़ कहीं शुच या कही मो पुतरा को ये कर लुगापटा धरिकी तो पारिक छुआ को सार छुआ सेमती थिला आईस भितर निआ लिबा सैला आम जो चित्कार कर कांदनु तापर से उद्धार कर। एसपी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है वहाँ संभवतः विद्युत शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है जो फर्स्ट फ्लोर है जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ और जो हमारा कर्मचारी लोग सिक्योरिटी और लोग जो मेडिकल कर्मचारी है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लेने वाले वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किए और वो भी आहत हुए और उनका भी अभी इलाज चालू हो रहा है। विशेष रूप से
हमने पहले से ही, हमारा सरकार आने के बाद ही हमने एक निर्देश डिपार्टमेंट को दिए थे कि कैसे भी हमारा जो फायर सेफ्टी को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर हमने निर्देश दिए थे। और इसके लिए भी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए हमने 420 करोड़ का बजट में प्रावधान हमने कर चुके हैं और उसका भी काम अभी चालू है। उसके साथ साथ अगले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट ईयर है जो 2026-27 में, इसके लिए भी हमने 400 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। वो जो बजट में हमने प्रावधान किए हैं वो पहले हमारा सरकार आने के बाद ही हर साल में हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए, फायर सेफ्टी के लिए स्वतंत्र ध्यान रखते हुए हमने बजट को बढ़ावा करते हुए वो काम कर रहे हैं। और अगले दिन के लिए भी निश्चित रूप से कैसे अच्छा ढंग से उसको प्रावधान किया जाए। पुलिस की एचवीके टीम ने शनिवार रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी कर एक हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का पर्दाफाश किया है। मौके पर ही पार्टी में शामिल 11 लोगों की जांच की गई है। आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी सांसद पूटा महेश कुमार और बीआरएस के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महेश कुमार और 7 अन्यों को थाने से बेल दी गई है। उन्हें नोटिस जारी करने के बाद छोड़ दिया गया। वहीं रोहित रेड्डी, नीतीश रेड्डी और नमित शर्मा को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शुरुआती जांच में सांसद निगेटिव थे, लेकिन ब्लड टेस्ट के बाद पुष्टि हुई कि उन्होंने भी ड्रग्स ली थी। उनके अलावा 5 अन्य लोगों में ड्रग्स की पुष्टि हुई है। तलाशी में 0.26 ग्राम कोकीन और बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। जिस फार्म हाउस पर पार्टी चल रही थी वह रोहित रेड्डी का ही बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार तड़के दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हमला हुआ था। एक ड्रोन हमले ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से उड़ानें निलंबित कर दी गई है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन के टकराते ही ईंधन टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। घटना के तुरंत बाद दुबई सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुबई एयरपोर्ट के पास आसमान में धुएं का काला गुब्बारा और ऊंची लपटें उठती देखी जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। यह हमला ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ है। यह पहली बार है जब तेहरान ने किसी पड़ोसी देश की गैर अमेरिकी संपत्तियों को सीधे तौर पर निशाना बनाने की धमकी दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज।